Hello and welcome to all my dear students watching this video. Today we are going to cover some other terminologies of chapter 2. Last class we covered business transactions, capital and drawings. So let us move on to the next term. Before I start my today's teaching program, I would like to thank you for the comments you have given. You have showered your good comments on me. I'm quite pleased to know that you are able to understand and grasp all my videos very well. But there is a slight adjustment, as Yogesh sir told that every student should share their comments only on the YouTube channel, so that the other members of the WhatsApp group do not get disturbed. Okay, there are some other teachers and other students of science section as well who gets disturbed by our messages. So you are requested to post all the comments only on the YouTube channel. From there I will see and I will try to answer your queries as well as I will see your comments. So let us move on to the teaching part now. Our today's program. So the first term of the day is liability. I remember that I have started teaching the very first term of this chapter, business transaction. During covering that term, there are some words like assets, liabilities, and capital, due to which we have left it pending. Capital we have already covered, so now we have come across liability. So let us do it first, and then assets, and then we will cover the remaining part of the business transaction. Liabilities, the simple meaning of liability is the amount payable to the outsider. Payable, word payable, PAYABLE, payable. वन वर्ड इज पेड. पे का मतलब पे कर दिया, पेबल का मतलब पे करना बाकी है. द अमाउंट विच इज पेबल टू द आउटसाइडर्स या पेबल टू द अदर्स, जो पैसा दूसरों का बाकी है पे करना अभी, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डेप्ट. ये कर्जे के रूप में भी जाना जाता है. कर्जा है ये हमारे ऊपर, हमारी उधार कह सकते हैं आप. ठीक है, तो ये हमारी लायबिलिटी पार्ट है. तो लायबिलिटी मैंने एक वर्ड पहले भी इस्तेमाल किया है जब मैं आपको पढ़ा रहा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो वहीं से एक अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा उसका लिंक बनेगा. देर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी. द अमाउंट विच इज़ पेबल टू द आउटसाइडर्स, जो पैसा हमने आउटसाइडर्स का देना है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहरी कर्जा, एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो नाउ यू माइट बी वंडरिंग, यार अंदर वाला कौन है जिसका पैसा देना है? तो जो पैसा हमने ओनर का देना है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी. तो थोड़ा सा याद करो क्या कल की क्लास में बताया था. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल एक कराया था हमने. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंटिटी, द ओनर एंड बिजनेस आर कंसिडर्ड सेपरेट. ओनर को और बिजनेस को अलग अलग माना जाता है. एंड द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस कॉल्ड कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस. जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया है उसको हम बिजनेस के लिए क्या मानते हैं? कर्जा मानते हैं, लायबिलिटी मानते हैं. और वो कौन सी कैटेगरी में शामिल करते हैं? हम इंटरनल लायबिलिटी के अंदर शामिल करते हैं. ठीक है, क्योंकि ओनर इज ए इंटरनल मेंबर. रिमेंबर द चैप्टर 1, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. देर आर टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो इन इंटरनल यूजर्स वी हैव काउंटेड owner, management and employees. Okay, so owner is a internal user of accounting. So the liability which is to be paid to the owner is termed internal liability, and the liability which is due to be paid to the outsiders will be called external liability. I hope ये समझ में आ गया होगा. आगे फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं बच्चों, लायबिलिटी का क्या है. Liability can be further classified on the basis of payment. See, there are some liabilities which are required to be paid very quickly in the near future. कुछ liabilities यानी कुछ कर्जों की पेमेंट हमें बहुत जल्दी करनी होती है. ठीक है, whereas there are some other liabilities which are to be paid after a long period of time in future, जिनकी पेमेंट हमें काफ़ी समय के बाद करनी है. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, टाइम ड्यूरेशन के आधार पर भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं.
तो उसके बारे में बात करते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज I have to expand the screen, so I am switching off the video. Non-current liability, you can see on the screen non-current liability. Non-current liability means a liability which is to be paid after 1 year. ऐसी liability जिसको 1 साल के बाद पे करना है, तो they are called non-current liabilities. And examples are loans. Okay, debentures है इसका एग्जाम्पल, बट आई एम पुटिंग इट ऑन होल्ड. यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन. तो लॉन्ग टर्म लोन, बैंक से लोन लिया फॉर ए लॉन्ग टर्म, यानी कि 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, तो इट्स पेमेंट इज टू बी डन आफ्टर 1 year. तो 1 साल से ज़्यादा जिसकी पेमेंट करनी है, दे आर कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ लायबिलिटी इज current liability. Current liability, if non-current liability means liabilities which are to be paid after 1 year, so that means current liability means liabilities which are to be paid within 1 year, 12 months. तो जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है वो कौन सी कहलाएंगी? करंट लायबिलिटी कहलाएंगी. जैसे शॉर्ट टर्म लोन, बैंक से लोन लिया लेकिन फॉर 1 year. और इसके अंदर एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, क्रेडिटर्स. Creditors, who are creditors? I have already taught you. Pause the video and try to know what is creditor. Recall. Try to recall who are the creditors. I am telling you, creditor are those persons who give us good on credit. या creditors are those persons from whom we purchase goods on credit. जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं, they are creditors. Okay? तो क्रेडिटर्स, अब आप किसी से सामान खरीद लें उधार में, तो यू टेल मी व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड पेमेंट टाइम पीरियड. क्या किसी से हम उधार में लेते हैं कोई सामान, तो क्या उसको 2 साल के बाद देते हैं, 1 साल के बाद देते हैं? जनरली क्या होता है, द पेमेंट इज मेड विद इन 2 or 3 months, मे बी 4 months, 5 months, बट नॉट मोर देन 1 year. तो दैट इज़ वाई क्रेडिटर्स आर classified under current liability. So all the payments which are to be made within 1 year, they are current, and if after 1 year, they are non-current. So basically we have covered now 4 types of liabilities. I can say internal liability, external liability, non-current liability, current liability. तो ये आपका हो गया बच्चों करंट लायबिलिटी सेक्शन. थोड़ा सा इसके अंदर एक ये बनाया हुआ है टेबल, इसके अंदर कुछ और बातें इसमें बताई गई हैं. एक पॉइंट मैं बताऊंगा आपको. एक वर्ड होता है ऑपरेटिंग साइकिल, इसके बारे में बात करते हैं. ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन. सो लेट अस स्टार्ट ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स कन्वर्जन इनटू कैश या कैश इक्विवेलेंट. क्या मतलब है इस बात का कि लेट्स से कि आज मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा, किसी सामान को बनाने के लिए कच्चा माल लेके आया, ठीक है. उसको फिर मैंने अपने यहाँ मैंने उसको अपनी फैक्ट्री में अपने मशीनों की हेल्प से, लेबर की हेल्प से उसको फिनिश गुड्स में तैयार कर लिया. लेट्स से इट टुक 20 days, 20 दिन मान लिया उसमें लग गए, ठीक है. उसके बाद फिर मैंने उसको पैकिंग करा के स्टिकर विकर लगाया, सारे समय में 2 महीने निकल गए. उसके बाद मैंने उसको अपने गोडाउन में रख दिया, गोडाउन में रखा रहा, 1 महीने पड़ा रहा गोडाउन में, नहीं बिका. उसके बाद फिर मैंने सेल्समैन लगा के उसको सेल कर दिया. सेल जिसको किया उसने उधार में कुछ समय मांगा, ठीक है. तो वो मेरे को जाके वापसी में जिसको मैंने उधार दिया, मैंने उसको 4 महीने का उधार दिया, जाके मेरे पास 10 महीने के बाद वो कैश वापसी आया. तो यानी आज मैं अगर रॉ मटेरियल में पैसा लगा रहा हूँ, रॉ मटेरियल में मैंने पैसा लगा दिया, उसके बाद उसको मैंने अपने यहाँ तैयार किया फैक्ट्री के अंदर, उसके बाद फिर सेल किया, और जिसको सेल किया उसने भी उधार ले लिया, और 4-5 महीने के बाद उसने मेरा पैसा वापसी किया. तो इन टोटल ये 10 months का मेरा प्रोसेस था. 10 months के बाद मेरा वो पैसा मुझे वापसी मिला. तो यहाँ पे मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 10 months की है, ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल. द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन एंड रिकन्वर्जन ऑफ कैश.
जो हमने एसेट या रॉ मटेरियल एक्वायर किया, उसके बाद वो पैसा वापसी आने में जो हमारे को समय लग गया, उसके दौरान का जितना भी पीरियड है वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल कहलाएगा। तो कई बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स की है, किसी की 9 मंथ्स की है, किसी की 15 मंथ्स की भी है। तो अगर किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल ना पता लगे तो हम उसको 12 महीने का मान लेते हैं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इफ़ द ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इट इज़ टेकन टू बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, आप देखते हैं ये क्या कह रहा है कि करंट लायबिलिटी किसको कहते हैं। अगर वो इनमें से कोई चारों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। नंबर 1, इट इज़ टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, ये मैंने आपको पढ़ाया। अगर उसकी पेमेंट हमें 12 महीने के अंदर अंदर करनी हो। इफ़ इट इज़ हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, यानी कि वो सामान हमने ख़रीदा है बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए। किसी से कोई सामान ख़रीदा, ठीक है, सामान खरीद लिया उधार पे, तो वो उधार हमने क्यों की, अपने बिजनेस में आगे रीसेल करने के लिए। तो ये भी हमारी कैसी लायबिलिटी मानी जाएगी, करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। अगर आपने बैंक से लोन ले लिया फॉर द परचेज ऑफ ए मशीनरी, नाउ थिंक, हैव यू परचेज द मशीनरी फॉर सेल? डेफिनेटली नॉट। So that liability will not be covered under current, it will be considered in non-current liability. And the first point says, if it is expected to be settled within normal operating cycle. Now, if I say the operating cycle of a business is 15 months, मान लीजिए किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने है, तो अगर मैं किसी लायबिलिटी की पेमेंट 14 महीने के अंदर कर रहा हूँ तो क्या वो करंट लायबिलिटी है? पॉज द वीडियो, थिंक इट। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। अगर मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स है और मैं किसी लायबिलिटी की पेमेंट मेरे को 14 मंथ्स के अंदर अंदर करनी है, तो इज़ इट ए करंट लायबिलिटी और नॉट? पॉज फॉर द मोमेंट। द आंसर इज yes, it is a current liability. You will think कि sir already you have told कि if the liability is to be paid within 12 months then only it is a current liability, but with an exception of operating cycle. If the operating cycle of a company or of a business is given in the question, then all the liabilities which are settled within its operating cycle, they are all covered under current liabilities. ये थोड़ा सा अलग पॉइंट था, इसको अच्छे से पढ़ना है सब बच्चों ने, ठीक है। तो ये अब मेरा लायबिलिटी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। नाउ कम्स द नेक्स्ट टर्म, एसेट्स, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर, नॉट ओनली ऑफ दिस चैप्टर, इन फैक्ट द होल बुक, एसेट्स। एसेट्स जिसको समझ में आ गया, almost you will come to know about the whole chapter. Okay, so this is the substantial part of this chapter. This term is very important and substantial for the knowledge of the whole book. So let us start with assets. Assets क्या है? अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बात करूं, आज सिंपल भाषा में बात करूं, तो क्या कहेंगे? एसेट्स हमारी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं, हमारी संपत्ति जिसको आप कहते हो, ठीक है, उसको एसेट कहते हैं। तो आपको मालूम है जो हमारी एसेट्स हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या हमने उनको फ्री में हासिल किया है? नो, उनके लिए हमें कुछ चुकाना पड़ा, उनके लिए हमने कुछ पैसा पे किया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि एसेट्स आर एक्वायर्ड एट मनी मेजरेबल कॉस्ट। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ, एसेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज। भाई वैल्यूएबल है कि नहीं है? जो आपकी बिल्डिंग है, जो आपका घर है, आपकी दुकान है, आर दे वैल्यूएबल फॉर यू और दे आर यूजलेस? डेफिनेटली दे आर वैल्यूएबल, आपके लिए बड़े कीमती हैं, वो तो वैल्यूएबल है। ओन्ड बाय बिजनेस एट ए मनी मेजरेबल कॉस्ट, जिनको आपने कैसे एक्वायर किया है? बाय पेइंग सम मनी। यू हैव नॉट गॉट एनी एसेट फ्री, आपने कोई भी चीज़ फ्री में हासिल नहीं की है। Let us take an example of your computer on which you are working, your mobile on which you are watching this video. So have you got this video mobile set free of cost by God as a gift? Definitely not. You have paid some money to acquire it. तो सबसे पहली बात हो गई कि एसेट्स बच्चों वैल्यूएबल होते हैं, बड़े कीमती होते हैं, और उनको हमने हासिल किया होता है बाय पेइंग सम मनी। उनको हमने कुछ पैसा देकर
या पैसे के बराबर कुछ दे करके हमने उनको हासिल किया है। दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। आगे चलते हैं। दूसरी बात, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो सभी चीज़ें बच्चों, मार्क माई वर्ड्स, ऑल दोज थिंग्स विच विल गिव बिजनेस बेनिफिट्स इन द फ्यूचर, एनीथिंग विच enable a business to get economic benefit in the future is an asset। ये एसेट, ये वाली लाइन सबसे सिंपल है और सबसे कारगर है। एनीथिंग विच विल एनेबल द बिजनेस टू गेट बेनिफिट इन द फ्यूचर, कोई भी चीज़ जिसका आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है वो आपके लिए एसेट है। कोई भी चीज़, ठीक है, आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ है जिसका आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, वो आपके लिए एसेट है, डेफिनेटली है। ठीक है, एक आपको ये याद रखना है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको। लैंड, आपके पास कोई लैंड यानी कोई धरती है, कोई प्लॉट है, वो सब। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक यानी कि आपके गोडाउन में सामान पड़ा है। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स बताए थे चैप्टर 1 में, याद कीजिए। दोज पर्सन टू हुम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिनको हमने उधार में सामान बेचा है और इनसे हमें पैसे लेने हैं। देखो, जब ये हमें पैसा देंगे ये लोग, तो हमें बेनिफिट मिलेगा ना, तो दैट इज़ वाई ये एसेट्स है। मैंने क्या बोला? एनीथिंग विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर, कोई भी चीज़ जिससे हमें फ्यूचर में कैश या कोई बेनिफिट मिलेगा वो एसेट है। तो स्टॉक से क्या बेनिफिट मिलेगा? इसको बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। फर्नीचर से क्या बेनिफिट मिलेगा? फर्नीचर में क्या क्या आ जाएगा आपका? आपकी टेबल है, मान लीजिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो फर्नीचर को, ठीक है। जैसे स्कूल में आप देखते हो बेंचेस हैं, तो बेंचेस क्या काम नहीं आ रहे? ऑल द स्टूडेंट्स दे सिट ऑन ऑल द बेंचेस, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ एसेट फॉर अ बिजनेस, एसेट फॉर स्कूल, ठीक है। बिल्डिंग, बिल्डिंग से क्या फ़ायदा हो रहा है? यू आर लिविंग इन योर हाउस, द स्कूल इज़ टीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल प्रीमाइज, सो वो उसके काम आ रहा है। तो एनी थिंग विच इज़ ऑफ एनी यूज़ इन द फ्यूचर इज़ एसेट। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट देगी, वो सब हमारे लिए एसेट्स हैं। कैश तो हमारा सबसे बढ़िया एसेट है, कभी भी काम ले सकते हो, ठीक है। बैंक बैलेंस यानी बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी एसेट है। क्या नहीं काम में आएगा? आएगा। कुछ टर्म्स और हैं, देखिए। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल। गुडविल शायद सुना हो आपने। गुडविल इज़ द रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है बिजनेस की, तो क्या वो एसेट है? क्यों नहीं है? आप एग्जांपल लेके देखिए। झांसी के अंदर एक रिनोन्ड स्वीट शॉप है। कैन एनीवन गेस विच शॉप आई एम रेफरिंग टू? तो आई विल नॉट स्पीक द नेम as it will be an advertisement. I do not want to do any advertisements. Let's take it if you are willing. बीकानेर मिष्ठान भंडार, ठीक है। तो उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है झांसी के अंदर। तो ड्यू टू इट्स गुड रेपुटेशन द बिजनेस इज अर्निंग गुड प्रॉफिट्स, अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहा है, तो वो उसका एसेट है, तो गुडविल हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ और टर्म्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। कॉपीराइट बच्चों क्या होता है? नाउ यू आर स्टडिंग इन क्लास 11 एंड आई हैव रेफर्ड टी.एस. ग्रेवाल एज आवर बुक। टी.एस. ग्रेवाल की बुक मैंने आपको रिकमेंड किया। नाउ इफ आई विल डिटैच द front page of T.S. Gravel and instead of that page I paste my own page with a name अभिषेक जैन, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? डेफिनेटली नहीं कर सकता। तो किसी व्यक्ति ने अपना कोई कुछ लिखा है, कुछ क्रिएट किया है, जिसको कोई और ना चुरा सके, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है? कॉपीराइट लेना पड़ता है। उसकी कुछ फीस लगती है, तो वो हमारे लिए एसेट है। क्यों है? क्योंकि जब तक हमारे पास कॉपीराइट रहेगा, हमारी क्रिएशन को कोई और नहीं चुरा पाएगा। तो बुक वाले जितने भी ऑथर हैं, दे ऑलवेज टेक कॉपीराइट्स सो दैट नो वन कैन कॉपी देयर स्टफ़, कोई भी उनका स्टफ़ चुरा ना सके। इसी तरह से ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क का मतलब जो हमारे बिजनेस का सिंबल है, ट्रेडमार्क। जैसे हर कंपनी में आपने देखा होगा कि देयर इज़ अ सिंबल, एवरी कंपनी हैज़ इट्स ओन सिंबल, मार्का जिसको आप बोलते हो। एंड nowadays every brand has their own mark and we can easily identify the company with their mark, brand mark। तो हमारे मार्क को कोई और ना चुरा सके, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको ट्रेड मार्क करना पड़ता है, ट्रेड मार्क, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक एसेट्स हो जाएगा।
तो एसेट्स बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहली बात की कि भाई एसेट्स जो हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे को फ्यूचर में कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ज़रूर देंगे। दूसरा, इनको हमने एक्वायर किया है मनी से, इनको हमने पैसा दे करके या पैसे की बराबर की कोई चीज़ दे करके एक्वायर किया है। फिर एग्जांपल्स की, ये बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, कार, ठीक है, बैंक, कैश, ये सब हमने किए। तो ये हमारे एसेट्स हैं बच्चों, ठीक है। अभी इसके फीचर्स करते हैं, फीचर्स में आ जाते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? नंबर 1, इट शुड बी ओन्ड। भाई हमारे हों, ऐसा ना हो कि पड़ोसियों वालों को आप अपना कहो कि ये मेरी कार खड़ी है गली में। इट शुड बी योर प्रॉपर्टी, देन इट इज़ योर एसेट, अदरवाइज इट इज़ नेबर्स एसेट, नॉट योर्स। सेकेंड, इट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, यानी टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन, इनटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी सीन। इनटेंजिबल में क्या आएगा? गुडविल। मैंने गुडविल का बताया था, थोड़ा सा लिखने में इतना अच्छा नहीं चल रहा पेन। गुडविल, गुडविल का मतलब रेपुटेशन। तो रेपुटेशन क्या दिखती है दीवारों में कि वो रही गुडविल, वो रही रेपुटेशन? नो, इट इज़ इनटेंजिबल। तो एसेट कैन बी टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल। नेक्स्ट, इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट, उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए। ऐसी कोई एसेट नहीं होती जिसका कोई वैल्यू ना हो। इफ़ देर इज समथिंग विद यू विच इज़ ऑफ नो वैल्यू, देन इट इज़ नॉट एन एसेट। तो इट मस्ट हैव सम वैल्यू। नेक्स्ट, उसको हम मनी में भी मेजर कर पाएँ। अगर आप उसको मनी में मेजर नहीं कर पा रहे तो अभी भी आप उसको बुक्स में नहीं लिख पाओगे। तो दीज आर ऑल करेक्टरिस्टिक्स। तो आज की क्लास में हमने इतना ही करना है। आज एकदम लायबिलिटीज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्चुअली दीज आर सम ओनली फ्यू लेंथी टॉपिक्स विच विल टेक a day or two. Other terms are not that lengthy. So we are going to spend one more day on asset. Tomorrow I'll teach you the different types of assets. So stay tuned for the next video and post your comments in WhatsApp section only. And that's it for the day. Have a nice day.